आपके पास विजय जी का फ़ोन नंबर है ना? बोला है कि 2 लड़के को भेजे हैं 4 बता दीजिए तो तुम बिना बता देंगे नहीं हाँ। नमस्कार। आज हम लोग महिला महाविद्यालय के सभा मंच पर उपस्थित हुए हैं सभागार पर। आज 21 फेब्रुआरी आंतर्जातिक मातृभाषा दिवस। आजकेर এই অনুষ্ঠানে আমি ধন্যবাদ জানাবো প্রথমেই প্রফেসর রীতা সিং প্রিন্সিপাল MMV, Dr. Uttam Giri, convener of this seminar, Chief Guest Professor Chandrakala Tripathi, Guest of Honor Dr. Sumita Chatterjee, Head Department of Bengali, Keynote Speaker Professor Sadanand Sahi। तो आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं भाषा दिवस के अवसर पर और एक साथ हम लोग और एक प्रोग्राम है इसी के साथ जो जिसका शीर्षक है फोकलोर इन कंटेम्पोररी इंडिया एक्सेप्टेंस एंड चैलेंजेस। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। पहले थोड़ा सा भाषा दिवस पर कहना चाहता हूँ। आमी बांगाली बोले गर्व अनुभव करी। आजकेर এই দিন বাঙালির দিন, আজকের এই দিন বাংলা ভাষীর দিন। পৃথিবীর ইতিহাসে এই দিনটি স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে আছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে। আর তার পিছনে বাঙালির রক্ত, বাঙালির সংগ্রাম, বাঙালির স্বপ্ন জড়িয়ে আছে। মাতৃভাষা এমন একটা বিষয় যা আমাদের প্রত্যেকটি দেহকোষে লুকায়িত আছে। আমাদের সমস্ত শক্তি, আমাদের সমস্ত সাহস, আমাদের সমস্ত সংগ্রাম সবার পেছনে ভাষা, আর সে ভাষা মাতৃভাষা। আপনারা ভাবুন একদিন যদি মাতৃভাষায় কথা বলতে না পারি তাহলে কি কষ্ট অনুভব হয়। एक दिन हम लोग अगर अपना मातृभाषा से बातचीत नहीं कर पाते तो कितना दुख होता है। এই দুঃখ আমাদেরকে ভীষণভাবে তাড়িত করে। আমি সম্মান জানাই সেই শহীদদের যারা বীরের মতো লড়াই করে অন্য ভাষার দাসত্ব অস্বীকার করে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে মাতৃভাষাকে উঁচু স্থান করে দিয়ে গেছেন। সেই বীরদের আবারও জানাই নমন। আজকের এই প্রোগ্রামের দ্বিতীয় যে অংশ সেটা হলো ফোকলোর বিষয়ে সেমিনার। আমি ফোকলোরের সম্পর্কে তেমন বিশেষ কিছু জানি না বা চর্চা নেই, তবু ফোকলোর এমন একটা বিষয় যেটা আমাদের সকলের মধ্যেই নিহিত থাকে বলে আমি মনে করি। এখন আজকের দিনে 21 শতকে দুটি দশক অতিক্রান্ত। 21वीं सदी में 2 दशक हम लोग पार चुके हैं। तो इस समय हम लोग क्यों फोकलोर के ऊपर चर्चा करेंगे? কি প্রয়োজন আমাদের এটা চর্চা করবার? আসলে আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের জীবনশৈলী, আমাদের প্রাচীন ইতিহাস সবকিছুই লুকিয়ে আছে আমাদের লোকসংস্কৃতির মধ্যে। আমরা যদি লোকসংস্কৃতি চর্চা করি তাহলে আমরা আমাদেরকেই খুঁজে পাব, আমাদের পূর্বজদের খুঁজে পাব, আমাদের আগামীকে খুঁজে পাব।
আমাদের স্বপ্ন খুঁজে পাবো। লোক সংস্কৃতি বলতে সাধারণভাবে বহুজন মনে করেন এ তো সেই গ্রামগঞ্জের কথা, সেই পুরনো দিনের কথা, কিন্তু বিষয়টা বোধ হয় ঠিক ওইটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বিষয়টা আরো অনেক বড়। আজকে যারা উপস্থিত আছেন এ বিষয়ে বলবার জন্য, তারা বলবেন, আমরা শুনব, সমৃদ্ধ হব। এ বিষয়ে সত্যিই আমাদের নতুন করে ভাববার আছে। লোক সংস্কৃতির একটা বড় অংশ লোকসাহিত্য, লোকভাষা। এর মধ্যে আমরা বেশ কিছু রিটিন ডকুমেন্ট পেয়ে যাই লিখিত সাহিত্য রূপে, সেগুলো আমরা যেমন চর্চা করতে পারি। এর আরেকটা অংশ, সেটা কিন্তু লিখিত আকারে নেই আমাদের কাছে, এই অংশটা ওরাল ট্র্যাডিশন। তো সেই ওরাল ট্র্যাডিশনের মধ্যেও আমরা অনেক কিছু পাব। লোক সংস্কৃতির আরো অনেক অভিমুখ রয়েছে, যেমন আমরা যদি একটু ভাবি, আমি একটু এই বিষয়টা বলবো, বেশি না, 2-5 মিনিট। আমাদের লোক সংস্কৃতির অনেক দিক যেগুলো আমরা ভাবতে পারি, যেমন লোকগীত, লোকসঙ্গীতের কথা এখানে উঠলো, লোকনৃত্য, লোকচিত্র, লোকক্রীড়া, লোকচিকিৎসা, লোকবাদ্য, এরকম বহু দিক আছে। বিস্তৃত আলোচনা তো যারা এসেছেন তারা করবেন, কিন্তু একটু সকলের অবগতির জন্য বলি। जैसे लोक संगीत यूपी का रसिया, होरी, काजरी, जम्मू कश्मीर का भाखा, छाकरी, लाडीशा, महाराष्ट्र का लावनी, कोई, ऐसे बहुत सारे हैं। उत्तराखंड का जोड़ा, अरुणाचल प्रदेश का जा जिंजा, पंजाब का भांगड़ा सब लोग जानते हैं, बांग्ला का बाउल, भाटियाली, ऐसे लोक संगीत। लोक नृत्य भी बहुत सारे हैं, जैसे छऊ है, राइवेश है, बिलासिनी नाट्यम है, बुइया, अरुणाचल का बुइया, चालो, असम का बिहू, छत्तीसगढ़ का गौरमारिया, गुजरात का गरबा, डांडिया, ऐसे बहुत सारे हैं। लोक चित्र भी ऐसे हम लोग देखेंगे जो आदिवासियों का है, और पटेर चित्र और नाना धरनेर चित्र आछे। लोक चिकित्सा आछे, लोकबाद्य आछे। लोकबाद्य जैसे ढोल, काड़ा, नाकाड़ा, बांसी, करताल, डुगडुगी, मादल, ढामसा, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं। लोक शिल्पेर कथा आमरा भाबते पारी, बाँशेर काज, काठेर काज, शालपातार काज, पाथरेर काज, एरकम अनेक विषय आछे। किंबा यदि आमरा लोकनाटकेर कथा भाबी, ताहले आमरा देखबो आमादेर এই ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের লোকনাটক রয়েছে। যেমন जैसे यूपी का नौटंकी, शांग, रसीला, जम्मू कश्मीर का फान पाथेर, गुजरात राजस्थान साइड का भवाई, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का यात्रा, एमपी का मार्च, महाराष्ट्र का तमाशा, क्वादा, गोवा का दशावतार, असम का भावना, ओजापाली, केरल में कुडियाट्टम, कृष्णाट्टम, मुदियट्टू, कर्नाटक में यक्षगान, तमिलनाडु में थेरुकथु, ऐसे बहुत सारे लोक नाटक भारतवर्ष में जगह जगह प्रचलित है। और एक चीज, और एक दो चीज हम बोलेंगे, जैसे लोक खाद्य, ट्रेडिशनल जो फूड, व्यंजन, जैसे महाराष्ट्र में मिसाल पाव, पंजाब में मक्की की रोटी, सरसों का साग, बांग्ला माछेर झोल भात, गुजरात का ढोकला, कश्मीर का रोगान जोश, तमिलनाडु का पोंगल, असम में पापाया खार या बांखा गाजर लागत कुकुड़ा, बिहार का लिट्टी चोखा,
हिमाचल का धाम, तेलंगाना का सर्वपिंडी साकिनालू, पाचिकुलुशु, उत्तराखंड में प्रचलित काफुली, त्रिपुरा में मुई बोरोक, झारखंड का चिल्का रोटी, धुसका, ओडिशा का फेमस छेना पोड़ा, शांतुला, पालुआ लड्डू, केरल में चलता है अप्पम, दाल रोटी, ऐसे बहुत सारे ट्रेडिशनल फूड है। लेकिन आज के डेट में क्या है कि ये सब चीजें धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, संकट आ गया है। फिर भी हम लोग देखते हैं कि बहुत लोग ये सब आज खोजते हैं और दोबारा ये सब शुरू करते हैं। ये जहाँ मिलता है वो सब जगह पहुँच जाते हैं इसका स्वाद परसने के लिए। ऐसे और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जैसे ट्रेडिशनल ड्रेसेस। भारत में बहुत सारे टाइप का टोपी एक जगह चलता है, जैसे हिमाचली टोपी, नेपाली टोपी, तमिल टोपी, मणिपुरी टोपी, ऐसे बहुत सारे टोपी है। और टोपी के अलावा और भी माथे के ऊपर बेड़ी लगा के उसमें चिड़िया के पालक लगाते हैं और कुछ पंख लगाते हैं, ऐसे है वो भी है। और पगड़ी भी इंडिया में, भारत में बहुत जगह यूज होता है, जैसे गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में। तो ये जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस है आज के डेट में ये सब बहुत कम दिखाई देता है। मैं भी अपना ट्रेडिशनल ड्रेस छोड़ के वेस्टर्न ड्रेस में इस मंच पर खड़ा हूँ। तो ऐसे धीरे धीरे सब कुछ चेंज हो रहा है। ये जो संकट आ रहा है इससे हम लोगों को लड़ाई करना है, निपटना है। कैसे हम लोग अपना जो ट्रेडिशन है, अपना जो कल्चर है, इसको बरकरार रखें, आगे बढ़ाएं, ये हम लोगों को सोचना है। तो आज এই যে আলোচনা চক্র, আমার বিশ্বাস, আমাদের বিশ্বাস, আমরা এই সমস্ত বিষয় নিয়ে এখানে আলোচনা শুনব এবং এই সমস্ত সংকট থেকে আমরা কিভাবে উত্তরিত হব সেই উত্তরণের পথ নিশ্চয়ই আমরা দেখতে পাব। আমি এই সেমিনারের যারা আয়োজন করেছেন তাদের পুনঃ ধন্যবাদ জানাই এবং আজকের ভাষা দিবসের পূর্ণ অবসরে যারা ভাষা শহীদ তাদেরও আমার সম্মান শ্রদ্ধা জানাই। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। Thank you, sir, for your presidential remarks.